لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی ربی یسر ولا تعسر وتمم بالخیر وبک نستعین آمین یا الہی آمین۔ اللہم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ینفعنا وزدنا علما۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ آج ہم 19 پارے کا آغاز کریں گے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا بڑا احسان ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں یہ توفیق عطا کی کہ ہم 19 پارے تک تو آ ہی گئے ہیں، تو انشاءاللہ اسی طرح سے ہم 30 پارے تک بھی آ جائیں گے انشاءاللہ۔ آپ لوگ آج کے پارے میں پڑھیں گے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے رشتہ داروں کے لیے جو احکامات دیے کہ جو اللہ کے دین کا پیغام ہے وہ آپ اپنے رشتہ داروں کو دیں۔ دیکھیے سب سے مشکل مقام ہوتا ہے جو آپ دوستوں کو کہنا آسان ہے، وہ سن بھی لیتے ہیں، نہیں بھی سنتے، کبھی مذاق سے کوئی بات بھی کہہ دیں گے، لیکن رشتہ داریاں جو ہوتی ہیں نا وہاں پہ بڑا مشکل مقام آ جاتا ہے، کیونکہ ہم ان کے ساتھ ہی گھروں میں رہتے ہیں، بہن بھائی ہیں، جیسے فار ایگزامپل ان کے بچے ہیں، پھر خالیں ہیں، پھپھیاں ہیں، ارد گرد کے جو بھی رشتہ دار ہوتے ہیں۔ اب وہاں پہ جب آپ کو سمجھ آنی شروع ہوتی ہے نا تو آپ ان کو جب یہ بتاتے ہو کہ دیکھیں میں نے یہ قرآن میں پڑھا ہے، یہ چیز، یہ رسم غلط ہے، یہ طریقہ غلط ہے، فار ایگزامپل آپ ان کو کوئی ایسی بات بتاتے ہیں نا تو ان کو پھر غصہ آنا شروع ہو جاتا ہے، وہ کہتے ہیں لو اس نے کوئی نیا دین سیکھ لیا ہے، کل تو ہمارے ساتھ ہی سارا کچھ کرتی تھی، آج ہمیں یہ نصیحتیں کرنا شروع ہو گئی ہے۔ تو ایسے بہت زیادہ معاملات آتے ہیں، اسپیشلی آج ہم پڑھیں گے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ سسرال کے بارے میں بات کریں گے کہ وہ بھی رشتے جو ہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بنائے ہیں، تو ان رشتوں میں کیونکہ وہ نئے رشتے ہوتے ہیں وہاں پہ جا کے ہم اپنا آپ اگر منواتے ہیں یا کوئی ایسی بات ہم بتاتے ہیں تو جو بھی پرابلمس ہوتی ہیں تو آپ صرف یہ دیکھیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے پھر جو اتنی پیاری دعائیں سکھائی ہیں کہ ہم اپنی پوری کوشش کریں کہ اللہ کا دین دوسروں تک کیسے پہنچانا ہے، لیکن اس کے باوجود بھی جب ہماری کوشش میں کوئی کمی رہ جاتی ہے تو اس کو پورا ہماری دعائیں کرتی ہیں۔ تو آج کی انشاءاللہ پارے میں ہم یہ بھی دیکھیں گے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں کون کون سی دعائیں سکھائی ہیں انشاءاللہ۔ تو شروع کرتے ہیں 19 پارہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ قول الذین لا یرجون لقاءنا، کہ کہا انہوں نے نہیں جو امید رکھتے ہم سے ملنے کی کہ کیوں نہ نازل کیے گئے ہم پر فرشتے یا ہم دیکھ لیں اپنے رب کو، یقیناً انہوں نے تکبر کیا اپنے نفوس میں اور سرکشی کر رہے ہیں۔ اب دیکھیے کہ بار بار ہم یہ بات پڑھ رہے ہیں نا، اپنے کتنے پہلے پارے سے ہم سورہ بقرہ سے یہ پڑھ رہے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جب وہ یہ کہا کرتے تھے کہ ہمیں کوئی نشانی دکھاؤ، آخر ایسا کیوں نہیں ہوتا کہ فرشتے نازل ہوتے، تمہیں سونے کا گھر مل جاتا، تمہیں کوئی دولت مل جاتی، تمہیں کوئی کاروبار ایسا ملتا تو ہمیں بھی لگتا کہ تم اللہ کی طرف سے بھیجے ہوئے ہو۔ تو یہاں پہ بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ انہی کی بات بتا رہے ہیں، تو انہوں نے کہا کہ ایسا کیوں نہیں ہوتا کہ کوئی فرشتے نازل ہوتے، ہم بھی دیکھتے کہ تمہارے ارد گرد کوئی فرشتے ہیں۔ اور پھر انہوں نے یہ بھی کہا کہ آخر ایسا جو تمہیں وہی بھیجتا ہے تو ہمیں بھی دکھاؤ، آخر وہ رب کون ہے؟ اور اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں انہوں نے تکبر کیا اور بہت بڑی سرکشی کی۔ جس دن یہ دیکھیں گے فرشتوں کو تو نہیں ہوگی خوشخبری اس دن مجرموں کے لیے، اور وہ کہیں گے کہ کوئی آڑ پناہ ہو ہمارے لیے۔ کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جس دن یہ فرشتے دیکھ لیں گے، جب وہ ان کی جان قبض کرنے آئیں گے تو اس وقت ان کو مہلت نہیں دیں گے، تو اس وقت وہ دیکھ لیں گے کہ فرشتے کیسے ہیں اور متوجہ ہوں گے ہم ان کے کاموں کی طرف جو انہوں نے کیے ہوں گے کوئی عمل، تو بنا دیں گے ان کو غبار بکھرا ہوا۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو عمل وہ اس دنیا میں کرتے رہے، وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی آیات کا انکار کرتے رہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ساتھ شرک کرتے رہے، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کے اعمال جو انہوں نے نیک عمل بھی دنیا میں کیے ہوں گے نا، اس دن غبار بنا کے اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کو اڑا دیں گے، اور اہل جنت اس دن بہتر ہوں گے ٹھکانے کے لحاظ سے اور عمدہ آرام گاہ کے لحاظ سے۔ جس دن پھٹ جائے گا آسمان ابر سے اور نازل کیے جائیں گے فرشتے کثرت سے، تو اللہ سبحانہ
सुब्हान ताला फरमाते हैं कि उस दिन कसरत से फरिश्ते आएंगे, आज जो तुम मांग रहे हो ना वो आज पूरी होने वाली चीजें नहीं है। बादशाही उस दिन दर हकीकत रहमान की होगी और होगा वो दिन काफरों पर बड़ा ही सख्त। और जिस दिन काट खाएगा जालिम अपने हाथों को, कहेगा कि ऐ काश इख्तियार किया होता मैंने रसूल के साथ सीधा रास्ता, और हाय मेरी किस्मत, काश मैंने ना बनाया होता फलां शख्स को दोस्त। अब गौर कीजिए, ये अल्लाह सुब्हानहू तआला बता रहे हैं कि क़यामत वाले दिन जब लोग अल्लाह सुब्हानहू तआला के सामने हाजिर होंगे तो ये उस वक्त कहेंगे कि काश हमने फलां दोस्त ना बनाया होता। तो आज आप सब अपने अपने इर्द के जो आपके दोस्त है ना, आप वो देखिए कि क्या वो आपको दीन की तरफ बुलाने वाले हैं या दीन के रास्ते से हटाने वाले हैं। हटाने वाले हमें ये लगता है कि नहीं नहीं कोई भी ऐसा थोड़ी है, लेकिन आप ये देखिए कि क्या वो अल्लाह सुब्हानहू तआला के अहकामात के मुताबिक जिंदगियां गुजार रहे हैं। अगर वो नहीं गुजारे ना तो आप ये देख लीजिए कि इंसान जो है वो अपने दोस्त के दीन पे होता है। और अल्लाह सुब्हानहू तआला आगे फरमाते हैं, यकीनन उसने बहका दिया मुझको नसीहत से उसके बाद कि आ गई थी मेरे पास। और यहाँ पे किसने बहका दिया? उस दोस्त ने, कि अल्लाह सुब्हानहू तआला की तरफ से तो नसीहत आ गई थी, मैंने खुद कुरान में पढ़ा था, लेकिन मेरी दोस्तियां ऐसी थी कि मैं उनको नहीं छोड़ सकती थी और मैं उन्हीं के बहकावे में आ गई। और है शैतान इंसान को वक्त पर दगा देने वाला, और कहेगा रसूल ए मेरे रब, गौर से सुनिए इसको, और कहेगा रसूल ए मेरे रब, यकीनन मेरी कौम ने कर रखा था इस कुरान को छोड़ा हुआ। अल्लाह अकबर। आप ये देखिए कि हमें तो ये उम्मीद है ना कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारी शफात कर देंगे, और इसी उम्मीद की वजह से हम सारा कुछ ही गलत कर रहे होते हैं। जो भी समझ आती है, कुछ नेक काम किए, कुछ दूसरी तरफ भी, और करते हुए डरते भी नहीं है कि नहीं इंशाल्लाह मुसलमान है, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तो वादा किया वो हमारी शफात करेंगे। तो ये गौर कीजिए कि अल्लाह सुब्हानहू तआला उस दिन की खबर दे रहे हैं कि उस दिन रसूल क्या कहेंगे कि या रब्बुल आलमीन इन्होंने ये कुरान को छोड़ दिया था। और अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमाते हैं, और इसी तरह बना दिया हमने हर रसूल के लिए दुश्मन मुजरमों में से, और काफी है तेरा रब हदायत देने वाला और मददगार। और कहा उन लोगों ने जिन्होंने कुफर किया कि क्यों नहीं उतारा गया इस पर कुरान पूरा एक ही दफा इसी तरह से, ताकि मजबूत रखे हम इससे तुम्हारे दिल को, और पढ़कर सुनाया हमने इसको ठहर ठहर कर। और नहीं लाते हम ये तुम्हारे पास कोई बात, मगर लाएंगे हम तुम्हारे पास हक और उम्दा वजाहत। और जो लोग जमा किए जाएंगे अपने चेहरों के बल दोजख की तरफ, यही लोग हैं बदतर ठिकाना है, और बहके हुए होंगे सीधे रास्ते से। और यकीनन हमने दी है मूसा को किताब, और बनाया उसके साथ उसके भाई हारून को मददगार। यहाँ पे आप अल्लाह सुब्हानहू तआला से हमेशा दुआ किया कीजिए। जब हम दुआ कहते हैं ना रब्बी इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली, तो देखिए इसके आखिर में उसके बाद वाली जो दुआ है वो इतनी प्यारी है कि हजरत मूसा अलैहिस्सलाम अल्लाह सुब्हानहू तआला से अपना मददगार अपने ही खानदान में मांगते हैं, तो अल्लाह सुब्हानहू तआला ने उनको हारून अलैहिस्सलाम मददगार के तौर पे दे दिए थे। तो आप भी दुआ मांगा करें कि या अल्लाह मुझे कुरान की समझ आ गई है, इसी तरह से मेरे घर वालों में वजअली वजीरन मिन अहली, कि मेरे घर वालों में मेरा मददगार बना दे। आमीन सुम्मा आमीन। और आयत नंबर 36, और फिर कहा हमने कि दोनों जाओ उन लोगों के पास जिन्होंने तकसीब की है हमारी आयात की, आखिरकार हमने हलाक कर दिया उनको पूरी तरह। और कौम नूह ने जब झुटलाया रसूलों को तो हमने उन्हें गर्क कर दिया, और बना दिया उनको लोगों के लिए निशानी, और तैयार कर रखी है हमने जालिमों के लिए अजाब दुख देने वाला। और आयत नंबर 38, और आद और समूद और कुएं वालों और उम्मतों को उनके दरमियान बहुत सी हमने हलाक कर दिया, और सबसे बयान की हमने उनके लिए मिसालें, और सबको हलाक कर दिया हमने पूरी तरह हलाक करना। देखिए बार बार हम कौमों के किस्से पढ़ रहे हैं, और मैं फिर आपको यही बात भी बता देती हूँ कि देखें वो अल्लाह सुब्हानहू तआला की मखलूक थे। अल्लाह सुब्हानहू तआला, जैसे हम सोचते हैं ना कि अल्लाह सुब्हानहू तआला अपने बंदों को ऐसे थोड़ी सजा देंगे, अब देखिए वो भी तो ऐसे ही सोचते होंगे ना, लेकिन क्योंकि उन्होंने अल्लाह सुब्हानहू तआला की आयात से इनकार किया, अल्लाह सुब्हानहू तआला के साथ शिर्क किया था, तो आज हम एक वो भी देखेंगे कि अल्लाह सुब्हानहू तआला शिर्क की कौन सी बात हमें बताते हैं कि हर जमाने का शिर्क फर्क है। वो लोग बुतों का शिर्क करते थे, हम लोग आजकल किस चीज का शिर्क करते हैं? हम अपनी ख्वाहिशात नफ्स के साथ शिर्क करते हैं। और अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमाते हैं, बेशक गुजर चुके हैं ये इस बस्ती पर जिस पर बरसाई गई थी बदतरीन बारिश, और सबसे बयान की हमने उनके लिए मिसालें, और सबको हलाक कर दिया हमने पूरी तरह। और बेशक गुजर चुके हैं ये उस बस्ती पर जिस पर बरसाई गई थी बदतरीन बारिश, तो क्या नहीं ये देखते रहने वालों को, बल्कि ये उम्मीद ही नहीं रखते
दोबारा उठाए जाने की। और आयत नंबर 41 में अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमाते हैं, और जब वो देखते हैं तुझको तो नहीं कुछ करते तेरे साथ मगर हंसी मजाक। क्या यही शख्स है जिसको भेजा है अल्लाह ने रसूल बनाकर? करीब था कि ये हमको बहका देता हमारे माबूदों से, अगर ना हम साबित कदम रहते उन पर। और ये अनकरीब मालूम कर लेंगे जब देखेंगे अजाब को कि कौन भटका हुआ है सीधे रास्ते से। और आयत नंबर 43 ये बहुत गौर से सुनने वाली आया है, क्योंकि ये पूरा कॉन्सेप्ट चेंज कर देती है उस बात का। जब हम कहते हैं कि अल्हम्दुलिल्लाह हम तो शिर्क नहीं करते हैं, तो अल्लाह सुब्हानहू तआला क्या फरमाते हैं कि क्या देखा है तूने उसको जिसने बना रखा अपना माबूद अपनी ख्वाहिश नफ्स को। अल्लाह अकबर। तो क्या तू हो सकता है उसका जिम्मेदार? नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अल्लाह सुब्हानहू तआला पूछ रहे हैं कि क्या तू इसका जिम्मा लेगा क़यामत के दिन, जिसने अपनी ख्वाहिश नफ्स को अपना खुदा बना लिया, कि उसको ये है कि पर मैं तो ऐसे नहीं कर सकती हूँ। देखो आजकल की जिंदगी में तो ये बड़ा नामुमकिन है। ऐसे वाले अल्लाह सुब्हानहू तआला के अहकामात पे अमल करना मेरे लिए तो बहुत मुश्किल है। करते हैं ना हम ऐसे। अल्लाह अकबर। अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमाते हैं कि क्या तुम ये ख्याल करते हो कि इनमें अक्सर सुनते हैं या समझते हैं? नहीं, ये है मगर जानवर की तरह, बल्कि ये ज्यादा गुमराह है सीधी राह से, कि ये जानवरों से भी बदतर हैं। और अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमाते हैं कि क्या नहीं देखा तुमने कि तुम्हारा रब किस तरह फैला देता है साए को, और अगर वो चाहता तो उसको ठहरा रखता बेहरकत, फिर हमने कर दिया सूरज को इस पर दलील, फिर कब्जे में कर लिया हमने उसको अपनी तरफ समेट कर आहिस्ता आहिस्ता। और आयत नंबर 47 अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमाते हैं, और वही तो है जिसने बनाया तुम्हारे लिए रात को पर्दा और नींद को बाइसे सुकून, और ठहराया दिन को जी उठने का वक्त, और वही तो है जिसने भेजी हवाएं खुशखबरी बनाकर अपनी रहमत के आगे आगे, और हमने बरसाया आसमान से पानी पाक करने वाला, ताकि जिंदा कर दें उससे जमीन मुर्दा को, और पिलाएं हम इसे उनको जो हमने पैदा किए हैं छुपाए और इंसान बहुत से। और आयत नंबर 50 और यकीनन हमने तरह तरह से बयान किया उसको इनसे ताकि वो नसीहत हासिल करें, तो कबूल ना किया बहुत से लोगों ने सिवाय इनकार के। और अगर हम भेजते तो भेज देते हर बस्ती में एक डराने वाला, तो ना कहा मानो तुम काफरों का, और जहाद करो उनके साथ इस कुरान से एक जबरदस्त जहाद। अब गौर कीजिए, ये आया जो है ये मक्की दौर की आया है, अभी तो जहाद का कोई सिलसिला ही नहीं शुरू हुआ था। यहाँ पे अल्लाह सुब्हानहू तआला जहाद किस बात को कह रहे हैं कि इस कुरान से दूसरे लोगों को हदायत दो, और ये सबसे बड़ा जहाद है कि लोगों को सीधी राह पे लेके आना। और ये बहुत मुश्किल काम होता है उस वक्त जबकि हमारे साथ वाले जो लोग होते हैं, हमारे लव वंस जो होते हैं, वो एक दूसरी डगर पर चल रहे होते हैं। और अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमाते हैं, और वही तो है जिसने मिलाया दो दरियाओं को, ये एक शीरीन प्यास बुझाने वाला और ये दूसरा खारी कड़वा, और बना दिए दोनों के दरमियान एक पर्दा और मजबूत रुकावट। अब यहाँ पे देखिए अल्लाह सुब्हानहू तआला ने जो दो दरियाओं की बात की कि दुनिया में भी दो तरह के लोग होते हैं, लेकिन देखिए ये दो दरिया आपस में लड़ नहीं रहे हैं, वो आराम से एक अपने रास्ते पे चल रहा है, एक अपने रास्ते पे चल रहा है। तुम अल्लाह सुब्हानहू तआला का पैगाम देते रहो, किसी के साथ कड़वी बात ना करो, लेकिन किसी की अना को तकलीफ ना दो, और उनको अल्लाह का पैगाम देते रहो। इंशाल्लाह एक दिन वो जरूर तुम्हारी बात सुनेंगे। लेकिन देखिए मेरे और आपके लिए अगर समझने की बात है कि कई दफा मुश्किल क्या हो जाता है कि वो लोग जिनके तो घराने पूरे ऐसे होते हैं कि शुरू से लेके उन्होंने ये देखा होता है कि माँ बाप भी ऐसे, बच्चे भी ऐसे, रिश्तेदार भी ऐसे, उनके लिए अमल करना और तबलीग करना और दूसरों को बताना बहुत आसान होता है। लेकिन बाज दफा ये होता है कि जैसे हमारी जिंदगी में कुरान खुलता है, हमें ये लगता है कि ओ माय गॉड आज मुझे समझ आई कि मेरा रब मुझसे क्या चाहता है, और मैं अपनी जिंदगी बदलना शुरू होती हूँ। लेकिन क्योंकि मेरे साथ वाले लोग किसी और डगर पर चल रहे होते हैं, उनका लेवल अभी फर्क होता है, उस वक्त जो प्रॉब्लम्स बीच में आ जाती हैं, अल्लाह सुब्हानहू तआला वही बात सिखाते हैं कि सब्र के साथ चलते रहो। देखिए अक्सर क्या होता है कि हस्बैंड एंड वाइफ में से किसी एक की जिंदगी में, फॉर एग्जाम्पल वाइफ है, उन्होंने कुरान समझ के पढ़ना शुरू किया, उसकी जिंदगी बदल गई, उसको ये लगा कि मैंने जो पहले जिंदगी गुजारी है अब मैंने वैसी जिंदगी नहीं गुजारनी है। अब हस्बैंड तो डेफिनेटली एक और लेवल पे अपनी जिंदगी गुजार रहे हैं, और वहां पे इतनी प्रॉब्लम हो जाती है कि अक्सर बच्चियां रोते हुए कॉल करती हैं कि मैं करना चाह रही हूँ लेकिन मेरे हस्बैंड इससे खुश नहीं है, मुझे समझ नहीं आ रही कि मैं अपने घर में मोहब्बत भी रखूं, इत्मीनान भी रखूं, खुशियां भी रखूं, और साथ में ये सारा कुछ भी करती रहूं। तो अल्लाह सुब्हानहू तआला ने यहाँ पे यही एग्जाम्पल दी कि देखो एक कड़वा पानी है, एक मीठा पानी है,
दोनों कैसे साथ चल रहे हैं ना। इसी तरह से हारमनी के साथ दुआएं करते हुए, देखिए हमने कुरान में अल्लाह सुब्हानहू तआला ने जितनी रब्बाना की दुआएं हैं ना वो सीखें और अल्लाह सुब्हानहू तआला से मांगे, क्योंकि दुआ से बड़ा हथियार कोई नहीं होता। और अल्लाह सुब्हानहू तआला इंशाल्लाह आहिस्ता आहिस्ता सबके दिल नरम कर देते हैं। आयत नंबर 54, और वही तो है जिसने पैदा किया पानी से इंसान को, फिर बनाए उसके नस्ल और ससुराल, और है तेरा रब बड़ी कुदरत वाला। देखिए जो अल्लाह सुब्हानहू तआला ने ससुराल बना दिया ना, तो जो अल्लाह की बनाई हुई चीजें उससे तो हमें मोहब्बत करनी चाहिए ना। तो बस ये देख लें कि कुरान में ससुराल का भी लफ्ज आया हुआ है, तो इसलिए उनसे मोहब्बत करना बड़ा जरूरी है। और आयत नंबर 55, और ये इबादत करते हैं अल्लाह के सिवा उसकी जो ना उनको नफा पहुंचा सके और ना उनको नुकसान ही पहुंचा सके, और है काफिर अपने रब की तरफ से पीठ फेरने वाला, और नहीं भेजा हमने तुमको मगर बिशारत देने वाला और डराने वाला। देखिए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जहां पे भी अल्लाह सुब्हानहू तआला ने ये बयान किया कि उनको रसूल क्यों बना के भेजा था, तो दोनों चीजें कि उनको बिशारत देने वाला और डराने वाला। कह दो कि नहीं मांगता मैं तुमसे इस पर कोई उजरत, मगर जो चाहे कि वो इख्तियार कर ले अपने रब की तरफ रास्ता। और आयत नंबर 57, और भरोसा रखो इस हमेशा रहने वाले पर जो नहीं मरेगा, और तस्बीह करते रहो उसकी हमद के साथ, और काफी है उसका अपने बंदे के गुनाहों से बाखबर होना। वही जिसने पैदा किया आसमान और जमीन को और जो कुछ इन दोनों के दरमियान है 6 दिन में, फिर जलवा अफरोज हुआ अर्श पर। वो रहमान है तो दरियाफ्त कर लो इसके बारे में किसी बाखबर से। और जब कहा जाता है इससे कि सजदा करो रहमान को, तो कहते हैं और क्या होता है रहमान, क्या सजदा करें हम जिसको तुम कहते हो हमसे। और बढ़ा दी इस बात ने उनकी नफरत। ये आयते सजदा भी है। बड़ी बरकत वाला है वो जिसने बनाए आसमान में बुर्ज और बनाए इसमें रोशन चिराग और चमकता हुआ चांद। और वही तो है जिसने बनाया रात और दिन को एक दूसरे के पीछे आने वाला, इसके लिए जो चाहे कि गौर करे या चाहे तो शुक्रगुजार हो। और आयत नंबर 63 में देखिए अल्लाह सुब्हानहू तआला इंसान की जो मेराज होती है ना कि वो किस लेवल तक नेक हो सकता है, अल्लाह सुब्हानहू तआला ने यहाँ पे बहुत खूबसूरत बयान किया। और बंदे रहमान के तो वो हैं जो चलते हैं जमीन पर नरमी से, और जब गुफ्तगू करते हैं इनसे जाहिल लोग तो कहते हैं सलाम। और वो जो गुजारते हराते अपने रब के आगे सजदा करते हुए और खड़े रहकर, और वो जो कहते हैं हमारे रब दूर कीजिए हमसे अजाब को दोजक के, बेशक इसका अजाब है पीछा ना छुड़ाने वाला, बेशक वो बुरी जगह है ठहरने और रहने की। और वो जब खर्च करते हैं तो ना इसराफ करते हैं और ना ही बुखल करते हैं, बल्कि रहते हैं उनके दरमियान इतदाल के साथ। और वो नहीं जो पुकारते अल्लाह के साथ माबूद किसी और को, और नहीं कत्ल करते उस जान को जिसको हराम किया अल्लाह ने मगर जायज तरीके से, और ना बदकारी करते हैं। और जो करेगा ऐसा तो मुब्तला होगा सख्त गुनाह में, दुगना किया जाएगा उसको अजाब क़यामत के दिन, और वो हमेशा रहेगा इसमें जिल्लत और ख्वारी के साथ। मगर जिसने तौबा की और ईमान लाया और उसने किए काम नेक, तो ऐसे लोगों के लिए बदल देगा अल्लाह सुब्हानहू तआला उनके गुनाहों को नेकियों में। देखिए ये मेरी फेवरेट तरीन आयत में से है। आयत नंबर 70 में अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमाते हैं कि जो तौबा कर ले और फिर उस पर जम जाए और फिर नेक अमल करने शुरू कर दे, तो अल्लाह सुब्हानहू तआला उसके सारे गुनाहों को नेकियों में बदल देंगे। और है अल्लाह बख्शने वाला और मेहरबान। और जिसने तौबा कर ली और अमल किए नेक, तो बेशक वो पलटा है अल्लाह की तरफ हक रुजू से, और वो नहीं जो गवाही देते झूठी। और जब वो गुजरते हैं बेहुदा चीजों के पास से, तो गुजरते हैं शरीफाना अंदाज से। और आयत नंबर 73, और वो कि जब समझाया जाता है उनको आयात से उनके रब की, तो नहीं गिरते उन पर अंधे और बहरे होकर। मतलब ये कि अल्लाह सुब्हानहू तआला की जब कोई आयात पेश की जाती है ना, तो अंधे बहरे होकर उस पर अमल नहीं करते, बल्कि खुद ही से रिसर्च करते हैं, खुद ही से इल्म लेने की कोशिश करते हैं कि हमें जो बताया जा रहा है वो ठीक है कि नहीं। और आया नंबर 74, इस आया के बारे में मैं हमेशा ये कहती हूँ कि ये इतनी प्यारी दुआ है कि आप अपनी हर नमाज में इसको शामिल कर लें और अल्लाह सुब्हानहू तआला से यही दुआ मांगा करें कि या रब्बल आलमीन मेरे बच्चों को, मेरे खामंद को मेरी आंखों की ठंडक बना दे। और देखिए ना सिर्फ ठंडक बना दे बल्कि उनको मुत्तकियों का इमाम बना दे। अल्हम्दुलिल्लाह, इतनी खूबसूरत दुआ है। और जब हम मांगते हैं अल्लाह सुब्हानहू तआला से कि मेरी औलाद को और मेरे खामंद को हमारी आंखों की ठंडक बना दे, तो अब देखिए क्योंकि अरबों में ये रवाज होता था कि जिसको बदुआ देते थे ना, तो उसको कहते थे तुम्हारी आंखें जले, क्योंकि जब आंखें जलती थी तो डेफिनेटली आंसू गिरते थे।
تو जब किसी को दुआ देनी होती थी तो फिर वो ये कहा करते थे कि इसकी आंखें ठंडी रहें। तो अल्लाह सुब्हानहू तआला यहाँ पे इतनी प्यारी हमें दुआ सिखा रहे हैं कि ये दुआ मांगा करो अल्लाह सुब्हानहू तआला से कि औलाद और खामन तुम्हारी आंखों की ठंडक रहें। रब्बना हबलना मिन अजवाजिना व जुर्रियातिना कुर्रता आयुन वजअलना लिलमुत्तकीना इमामा। और ए हमारे रब अता फरमा हमको हमारी बीवियों और हमारी औलाद से ठंडक आंखों की, और बना हम सबको परहेजगारों का पेशवा। यही है वो जो पाएंगे ऊंचे महल बदले में जो सबर उन्होंने किया, और इस्तकबाल होगा उनका वहां दुआ और सलाम से, और हमेशा रहेंगे इसमें। बहुत ही उम्दा है वो ठहरने और रहने की जगह। अब इस सूरा की आखिरी आया कि अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमाते हैं कि ए नबी कह दो कि नहीं परवाह करता तुम्हारी मेरा रब अगर नहीं तुम पुकारते हो उसको, बेशक तुमने तकजीब की है इसकी, सो अन करीब होगी तुम्हारी पूछ। अल्लाह अकबर। बहुत प्यारी सूरत थी। अब जो दुआएं भी आ रही हैं साथ साथ आप उनको याद कर लें। बल्कि अगर आपको मुश्किल भी लगता है ना तो आप ये दुआ लिख के अपने फ्रिज पे लगा दें, अपने जाय नमाज के पास रख दें, ताकि जब आप नमाज पढ़ें, स्पेशली जब आप नफल पढ़ती हैं तो आप तो देख के भी पढ़ सकती हैं ना, तो फिर मांगा करें अल्लाह सुब्हानहू तआला से दुआएं। अल्लाह सुब्हानहू तआला कबूल करने वाले हैं इंशाल्लाह। और अभी तो रमजान है, और रमजान में तो बहुत दुआएं कबूल होती हैं, स्पेशली लैलतुल कदर में अल्लाह सुब्हानहू तआला से बहुत दुआएं कीजिए, क्योंकि हमारी दुआएं और क्या होती हैं, हमारी औलाद और हमारे खामन के अलावा हम और क्या दुआएं मांगते हैं। अल्लाह सुब्हानहू तआला हमारे माँ बाप को जन्नतुल फिरदौस में दाखिल करे, हमारे बहन भाइयों पे अपना रहम करे, लेकिन असल में तो दिल जो तड़प रहा होता है वो अपनी औलाद के लिए होता है। तो इससे खूबसूरत दुआ और कोई हो ही नहीं सकती। अब हम शुरू करते हैं सूरह शुआरा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम करने वाला है। तौसीन मीम हरूफ मकत्तात हैं और जिसकी असल अल्लाह सुब्हानहू तआला ही जानते हैं। ये आयात हैं किताब रोशन की, शायद कि तुम हलाकत में डाल दोगे अपने आप को कि नहीं ये ईमान लाते। देखिए ये किसको अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमा रहे हैं। अल्लाह सुब्हानहू तआला नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से फरमा रहे हैं कि शायद कि तुम हलाक कर डालो अपने आप को कि नहीं ये ईमान लाते। बिल्कुल आप थोड़ा सा अगर अंदाजा करें इस बात को कि जैसे हमें हक का पता चलता है, कुरान हमारी जिंदगियों में खुलता है, तो जब हमारे एक आग सी लग जाती है ना कि किसी तरह से हम अपने लव वंस को पकड़ पकड़ के बताएं कि देखो जो अल्लाह सुब्हानहू तआला का पैगाम है वो क्या है, अल्लाह सुब्हानहू तआला के अहकामात पे जिंदगी गुजार लो, वरना बहुत अल्लाह सुब्हानहू तआला नाराज होते हैं। बिल्कुल वही बात के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तो अपनी आंखों से जन्नत और दोजख देखी थी, तो वो कैसे तड़पते थे कि मैं लोगों को किस तरह से इस रास्ते से उठा के दूसरे रास्ते पे ले आऊं जो हदायत का रास्ता है। और अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमाते हैं कि अगर हम चाहें तो नाजिल कर दें उन पर आसमान से एक निशानी, फिर रह जाए उनकी गर्दनें इसके आगे झुकी हुई, और नहीं आती उनके पास कोई नसीहत रहमान की तरफ से नहीं, मगर इससे वो मुंह फेर लेते हैं। सो यकीनन ये झुटला चुके हैं, तो अनकरीब पहुंच जाएगी उनको खबरें उसकी जिसकी वो हंसी मजाक उड़ाया करते हैं। क्या नहीं देखा उन्होंने जमीन की तरफ कितनी उगाई हमने इसमें हर किस्म की नफीस चीजें, बेशक इसमें निशानी है और नहीं है इनमें से अक्सर ईमान लाने वाले, और यकीनन तेरा रब वही है गालिब रहम करने वाला। और जब पुकारा तेरे रब ने मूसा को कि तू जा उन लोगों के पास जो जालिम है। आयत नंबर 11, कौम फिरौन के पास, क्या नहीं वो डरते? कहा उसने मेरे रब यकीनन मैं डरता हूँ कि वो मुझे झुटला देंगे। और आयत नंबर 13, और घटता है मेरा सीना और नहीं चलती मेरी जुबान, तो पैगाम भेज हारून की तरफ, और उनका मुझ पर एक गुनाह है, सो मैं डरता हूँ कि वो मुझको कत्ल कर डालेंगे। फरमाया हरगिज नहीं, तू जा तुम दोनों हमारी निशानियों के साथ, हम तुम्हारे साथ सुनने वाले हैं। सो दोनों जाओ फिरौन के पास, फिर कहो कि हम भेजे हुए हैं रब्बुल आलमीन की तरफ से, ताकि भेज दे हमारे साथ बनी इसराइल को। और आयत नंबर 18, फिरौन बोला कि क्या नहीं परवरिश किया हमने तुझको बचपन में, और रहा तो हमें अपनी उम्र के कई साल, तूने किया अपना काम वो जो तूने किया, और तू नाशुक्रों में से है। अब यहाँ पे वही बात बता रहे हैं कि हजरत मूसा अलैहिस्सलाम से जो एक कत्ले खता हो गया था, उसकी एक इंशाल्लाह डिटेल जो है वो जहाँ पे आएगी मैं आपको बताऊंगी, कि वो करके जब वो मदियन की तरफ चले गए थे, अब वो वापस आए। अब ये फिरौन कौन था? जो हजरत मूसा के साथ ही पला बड़ा था, और वो मूसा अलैहिस्सलाम को याद करा रहे हैं कि तुझे याद है कि तूने किस तरह से हमने तुझे पाला बड़ा किया, और तू बड़ा ही ना शुक्रा है। और आयत नंबर 20,
कहा उसने, किसने? मूसा अलैहिस्सलाम ने। किया था मैंने, और जब मैं था खताकारों में, फिर फरार हो गया मैं तुम्हारे पास से जब मुझे डर लगा तुमसे, फिर अता की मुझे मेरे रब ने हिकमत और बनाया मुझको रसूलों में से। और आयत नंबर 22, और ये एहसान है तू जताता है मुझ पर कि तूने गुलाम बना रखा है बनी इसराइल को। कहा फिरौन ने, और क्या है रब्बुल आलमीन? कहा उसने, रब है आसमान और जमीन का और जो कुछ है इन दोनों के दरमियान, अगर हो तुम यकीन लाने वाले। बोला उनसे जो उसके इर्द गिर्द थे, क्या नहीं तुम सुनते? कहा उसने, रब है तुम्हारा और रब है तुम्हारे बाप दादा का जो पहले गुजर चुके हैं। वो बोला, बेशक ये तुम्हारा रसूल जो भेजा गया है तुम्हारी तरफ यकीनन मजनून है। मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा कि रब है मशरिक और मगरिब का और जो कुछ इन दोनों के दरमियान है, अगर तुम समझते हो। वो बोला कि अगर तूने बनाया माबूद मेरे सिवा, तो जरूर मैं डाल दूंगा तुझे कैदियों के साथ। उसने कहा, अगरचे मैं लाऊं तेरे पास रोशन चीज है। किसने कहा था? मूसा अलैहिस्सलाम ने। और फरौन बोला कि ले आ इसको, अगर तू है सच बोलने वालों में। फिर डाल दी उसने अपनी लाठी, तो अचानक वो बन गई साफ अजदहा। और उसने निकाला अपना हाथ, तो फौरन वो हो गया सफेद देखने वालों के लिए। वो बोला सरदारों से अपने इर्द गिर्द, यकीनन ये तो एक जादूगर है बड़ा माहिर, ये चाहता है कि निकाल दे तुमको तुम्हारी जमीन से अपने जादू के जरिए। तो क्या मशवरा देते हो तुम? उन्होंने कहा, मोहलत दो इसको और इसके भाई को, और भेज दे शहर में इकट्ठा करने वालों को। ले आए तेरे पास तमाम जादूगर बड़े माहिर। तो जमा किए गए जादूगर वक्त मुकर्रर पर एक खास दिन। और कह दिया गया लोगों से कि तुम सब इकट्ठे हो जाओ ताकि हम पैरवी करें जादूगरों की, अगर हो जाए वो गलबा पाने वाले। और आयत नंबर 41, फिर जब आ गए जादूगर तो कहने लगे फिरौन से, क्या यकीनन हमारे लिए है अजर अगर हो गए हम गलबा पाने वाले? उसने कहा, हाँ, और यकीनन तुम इस वक्त मुकर्रबीन में हो जाओगे। आयत नंबर 43, कहा उनसे मूसा ने कि डालो जो कुछ तुम डालने वाले हो। तो डाल दी उन्होंने अपनी रस्सियां और अपनी लाठियां, और कहने लगे फिरौन के इकबाल की कसम, यकीनन हम ही गालिब रहेंगे। फिर डाल दी मूसा ने अपनी लाठी, तो यकायक वो निगलने लगी उसको जो कुछ उन्होंने झूठ बोला था। तो गिर पड़े जादूगर सजदे में, कहने लगे, हम ईमान लाए रब्बुल आलमीन पर जो रब है मूसा और हारून का। और आयत नंबर 49, अब फिरौन ये कह रहा है कि कहा उसने, ईमान ले आए हो तुम इस पर इससे पहले कि मैं इजाजत दूं तुमको? बेशक वो तुम्हारा बड़ा है और वो कि जिसने तुमको सिखाया है जादू। सो अनकरीब तुमको मालूम हो जाएगा, यकीनन मैं काट दूंगा तुम्हारे हाथ और तुम्हारे पांव मुखालिफ सिमत से, और यकीनन सूली पर चढ़ा दूंगा मैं तुम सबको इकट्ठा। उन्होंने कहा कि नहीं है कुछ नुकसान, बेशक हम अपने रब की तरफ ही लौट कर जाने वाले हैं। यकीनन हम उम्मीद रखते हैं कि माफ फरमा देगा हमारे लिए हमारा रब हमारे गुनाहों को, इस बना पर कि हम हो गए थे अव्वल ईमान लाने वालों में। और आयत नंबर 52 में अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमाते हैं, और हमने वही भेजी मूसा की तरफ के निकल पड़ो रात में हमारे बंदों के साथ, यकीनन तुम्हारा ताकुब किया जाएगा। फिर भेज दिए फिरौन ने शहरों में इकट्ठा करने वाले, यकीनन ये लोग हैं एक जमात थोड़ी सी, और बेशक ये हैं हमको गुस्सा दिलाने वाले, और यकीनन हम एक जमात हैं बहुत मुख्तात। और आयत नंबर 57, तो निकाल दिया हमने उनको बागों से और चश्मों से और खजानों से और नफीस क्याम गाहों से। इसी तरह हुआ और बना दिया हमने वारिस उनका बनी इसराइल को। आयत नंबर 60, और उन्होंने ताकुब किया उनका सूरज निकलते वक्त, फिर जब देखा एक दूसरे को, दोनों जमातों ने बोले मूसा के साथी, यकीनन हम पकड़े गए। अब क्या था कि मूसा अलैहिस्सलाम जो थे वो समंदर के आगे खड़े हुए हैं और आगे तो कोई रास्ता ही नहीं था। अब पीछे से देखा कि फरौन की कौम आ रही है, तो सब लोगों ने कहा मूसा को कि मूसा तूने तो हमें डुबो दिया, अब हम यहाँ पे क्या करें? और अब देखिए अल्लाह सुब्हानहू तआला के कैसा मौजज़ा होता है। उसने कहा कि हर किस नहीं, यकीनन मेरे साथ है मेरा रब, वो मुझे रास्ता बताएगा। तो वही भेजी हमने मूसा की तरफ के मार अपना असास समंदर पर, तो फट गया वो, सो हो गया हर एक टुकड़ा गोया के पहाड़ है बहुत बड़ा। और करीब ले आए हम वहां दूसरों को, और बचा लिया हमने मूसा और जो उसके साथ थे सबको। फिर गर्क कर दिया हमने दूसरों को, किसको? फिरौन को। बेशक उसमें निशानी है और नहीं हुए उनमें से अक्सर ईमान लाने वाले, और बेशक तेरा रब वही है जो गालिब और मेहरबान है। और आयत नंबर 69, और पढ़कर सुनाओ इनको वाकया इब्राहिम का। जब मैं ये आया पढ़ी थी तो मुझे इतना अच्छा लग रहा था कि इसी तरह से मैं जैसे आपको पढ़ के सुना रही हूँ ना सारा उर्दू में कुरान पाक, तो अल्लाह सुब्हानहू तआला इसी तरह से फरमा रहे कि
सुनाओ इनको इब्राहिम का वाकया। तो सुनिए कि क्या कहते हैं। जब कहा उसने अपने बाप से और अपनी कौम से, क्या है ये जिनको तुम पूछते हो? वो कहने लगे, हम पूछते हैं बुतों को, बस बैठे रहते हैं उनके पास जमे हुए। उसने कहा, क्या ये सुनते हैं तुम्हें जब तुम पुकारते हो? या फायदा देते हैं तुमको या नुकसान पहुंचाते हैं तुमको? उन्होंने कहा, बल्कि हमने पाया अपने बाप दादों को इसी तरह करते हुए। आयत नंबर 75। और उसने कहा, तुमने देखा जिनको तुम पूछते रहते हो, तुम और तुम्हारे बाप दादा जो पहले गुजरे, तो यकीनन वो दुश्मन है मेरे सिवा रब्बुल आलमीन के। जिसने पैदा किया मुझे, सो वही मुझे रास्ता दिखाता है, और वही है जो मुझे खिलाता है और मुझे पिलाता है, और जब मैं बीमार पड़ता हूँ तो मुझे शिफा देता है, और वो जो मुझे मौत देगा और फिर मुझे जिंदा करेगा, और वो जिससे मैं उम्मीद रखता हूँ कि वो बख्श देगा मेरे लिए मेरी खताएं फैसले के दिन। ऐ मेरे रब, अता कर मुझे हिकमत और शामिल कर मुझे नेकोकारों में, और बाकी रख मेरा जिक्र खैर बाद में आने वालों के लिए। बहुत ही प्यारी दुआ है, आप लोग इसे याद कर लीजिएगा और अल्लाह सुब्हानहू तआला से दुआ मांगे कि या रब्बुल आलमीन हमारे बाद भी हमारा जिक्र खैर रहे और हम जन्नत के वारिस बन जाए। आमीन सुम आमीन। और शामिल कर मुझे वारिसों में जन्नत नईम के, और बख्श दे मेरे बाप को, यकीनन वो हो गया है गुमराहों में, और ना कर मुझे रुसवा जिस दिन वो उठाए जाएंगे, जिस दिन ना फायदा देगा माल और ना बेटे, सिवाय जो आया अल्लाह के पास से लेकर कल्बे सलीम। आयत नंबर 90। और करीब कर दी जाएगी जन्नत मुत्तकियों के, और लाई जाएगी दोजख गुमराहों के सामने, और कहा जाएगा उनसे, कहाँ है वो जिनको तुम पूजा करते थे सिवाय अल्लाह के? क्या वो मदद कर सकते हैं तुम्हारी या खुद अपना बचाव कर सकते हैं? और आयत नंबर 94। फिर ऊंधे मुंह डाल दिए जाएंगे इसमें वो खुद और गुमराह भी, और लश्कर शैतान के सब कहेंगे जबकि वो वहां आपस में झगड़ेंगे, अल्लाह की कसम यकीनन हम थे गुमराही में खुली हुई, जब बराबर ठहराते थे हम तुम्हें रब्बुल आलमीन के, और नहीं गुमराह किया था हमको मगर इन मुजरिमों ने, तो नहीं हमारे लिए कोई सिफारिश करने वाला और ना कोई हमारा दोस्त गमखार। तो काश कि हमारे लिए लौट जाना होता तो हो जाते हम ईमान लाने वालों में। देखें, आखिरत में अल्लाह सुब्हानहू तआला ने बताया कि किस तरह से वो गिड़गड़ाएंगे, दुआएं मांगेंगे कि एक दफा हमें वापस लौटा दिया जाए, तो हम कभी ऐसा काम नहीं करेंगे। तो आज देखिए हमें पता चल गया है ना, आज तो हमारे पास जिंदगी की मोहलत है। तो अल्लाह सुब्हानहू तआला से दुआ मांगते हैं कि अल्लाह सुब्हानहू तआला हमें वो अमल करने वाला बना दे जो तेरे पसंदीदा अमल है। आमीन सुम आमीन। बेशक इसमें निशानी है और नहीं है उनमें अक्सर ईमान लाने वाले, और यकीनन तेरा रब वही है जो गालिब और मेहरबान है। जुटलाया था कौम नूह ने रसूलों को, जब कहा उनसे उनके भाई नूह ने कि क्यों नहीं तुम डरते, बेशक मैं हूं तुम्हारा रसूल ईमानतदार, तो डरो अल्लाह से और अताअत करो मेरी। तो नहीं मैं मांगता तुमसे इस पर कोई सिला, नहीं है मेरा सिला मगर रब्बुल आलमीन के जिम्मे, तो डरो अल्लाह से और मेरी अताअत करो। और आयत नंबर 111। और वो बोले कि क्या हम ईमान लाए तुझ पर जबकि तेरी पैरवी करते हैं रजील तरीन लोग? उसने कहा, और क्या मालूम है मुझे कि क्या वो करते हैं? नहीं उनका हिसाब मगर मेरे रब के जिम्मे है, अगर तुम समझो। और नहीं हूं मैं निकाल देने वाला मोमिनों को, नहीं हूं मैं मगर खबरदार करने वाला वाज़े तौर पर। और आयत नंबर 116। उन्होंने कहा कि अगर ना तुम बाज आओगे ए नूह, तो यकीनन तुम होगे इनमें जो संसार कर दिए गए हैं। आयत नंबर 117। उसने कहा, मेरे रब बिलाशुबा मेरी कौम ने मुझे झुटला दिया है। और आयत नंबर 18। सो फैसला कर दे मेरे और इनके दरमियान एक खुला फैसला, और नजात दे मुझे और जो मेरे साथ हैं ईमान वालों में से। बस नजात दी हमने उसको और उनको भी जो इसके साथ थे कश्ती में जो लदी हुई थी, फिर गर्क कर दिया हमने इसके बाद बाकी लोगों को। बेशक इसमें निशानी है और नहीं है इनमें अक्सर ईमान लाने वाले, और यकीनन तेरा रब वही है जो गालिब मेहरबान है। जुटलाया था आद ने रसूलों को, जब कहा उनसे उनके भाई हूद ने कि क्यों नहीं तुम डरते अल्लाह से, बेशक मैं हूं तुम्हारा रसूल ईमानतदार, तो डरो अल्लाह से और अताअत करो मेरी। तो नहीं मैं मांगता तुमसे इस पर कोई सिला, नहीं मेरा सिला मगर रब्बुल आलमीन के जिम्मे। और आयत नंबर 128। क्या तुम बनाते हो हर ऊंचे मुकाम पर एक निशानी फजूल, और तमीर करते हो शानदार महल के शायद तुम हमेशा यहाँ पे रहने वाले हो, और जब तुम गिरफ्त करते हो तो पकड़ते हो जाबराना, तो डरो अल्लाह से और अताअत करो मेरी, और डरो इससे जिसने जो कुछ दिया है तुम्हें जो तुम जानते हो। और आयत नंबर 123। अता किए उसने तुम्हें मवेशी और बेटे और बागात और चश्मे, यकीनन मैं डरता हूँ तुम्हारे बारे
हमें अजाब से बड़े दिन के। वो कहने लगे कि यकसा है हमारे लिए, खा तू नसीहत कर या ना हो तू नसीहत करने वालों में, नहीं ये तो मगर आदत है अगलों की, और नहीं है हम अजाब दिए जाने वालों में। तो झुटलाया उन्होंने उसको, सो हमने उनको हलाक कर दिया। बेशक इसमें निशानी है और नहीं थे इनमें से अक्सर ईमान लाने वाले। देखिए हम बार बार वही किस्से पढ़ रहे हैं, तो अल्लाह सुब्हानहू तआला हमें डिफरेंट एंगल से समझा रहे हैं कि देखो जब इन्होंने अपने रसूलों का कहना नहीं माना, इन्होंने अल्लाह सुब्हानहू तआला के अहकामात को नहीं माना, तो अल्लाह सुब्हानहू तआला ने कैसे उन बस्तियों को उलट दिया। और यकीनन तेरा रब वही है जो गालिब मेहरबान है। जुटलाया था समूद ने रसूलों को, जब कहा उसने उनके भाई साले ने कि क्यों नहीं तुम डरते, बेशक मैं हूं तुम्हारा रसूल ईमानदार, तो डरो अल्लाह से और अतात करो मेरी, और नहीं मैं मांगता तुमसे इस पर कोई सिला, नहीं मेरा सिला मगर रब्बुल आलमीन के जिम्मे। और आयत नंबर 46 में अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमाते हैं कि क्या छोड़ दिए जाओगे इनमें जो यहाँ है बेखौफ, बागों में और चश्मों में और खेतियां और खजूरें जिनके खोशे हैं लतीफ, और तराशते हो तुम पहाड़ों में घर बहुत खुशी के साथ, तो डरो अल्लाह से और अतात करो मेरी, और ना मानो हुक्म हद से बढ़ जाने वालों का। और वो लोग जो फसाद करते हैं जमीन में और नहीं इस्लाह करते, वो कहने लगे असल में तुम सहरजदा लोगों में हो, नहीं तुम मगर एक बशर हमारी तरह के, तो ले आओ कोई निशानी अगर हो तुम सच्चों में। आयत नंबर 155, उसने कहा यह है ऊंटनी, इसकी है बारी पीने की और तुम्हारी बारी पीने की एक मुकर्रर दिन की, और मत छूना इसको बुराई से वरना आप पकड़ेगा तुमको अजाब एक बड़े दिन का। तो मार डाला उन्होंने इसको, बस हो गए वो नादिम, सो आप पकड़ा उनको अजाब ने, बेशक इसमें निशानी है और नहीं है इनमें अक्सर ईमान लाने वाले। सो आ पकड़ा उनको अजाब ने, बेशक इसमें निशानी है और नहीं है इसमें से अक्सर ईमान लाने वाले। और यकीनन तेरा रब वही है जो गालिब मेहरबान है। जुटलाया था कौम लूत ने भी रसूलों को, जब कहा उनसे उनके भाई लूत ने कि क्यों नहीं तुम डरते हो, बेशक मैं हूं तुम्हारा रसूल ईमानदार, तो डरो अल्लाह से और अतात करो मेरी, और नहीं मैं मांगता तुमसे इस पर कोई सिला, नहीं मेरा सिला मगर रब्बुल आलमीन के जिम्मे। और आयत नंबर 165, क्या तुम आते हो मर्दों पर तमाम जहानों में से और छोड़ देते हो जो पैदा किया है तुम्हारे लिए तुम्हारे रब ने तुम्हारी बीवियों में, बल्कि तुम हो लोग हद से निकले हुए। वो कहने लगे कि अगर ना बाज आए तुम ए लूत, तो यकीनन हो जाओगे तुम उनमें जो निकाल दिए जाते हैं। और आयत नंबर 168, उसने कहा यकीनन मैं तुम्हारे अमल से बेजार हूँ, मेरे रब नजात दे मुझको और मेरे घर वालों को इससे जो ये करते हैं। सो नजात दी हमने उसको और उसके घर वालों को सबको, मगर एक बुढ़िया थी जो पीछे रह जाने वालों में, फिर हलाक कर दिया हमने दूसरों को। और आयत नंबर 173 में अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमाते हैं, और बरसाई हमने उन पर एक बारिश, सो बुरी थी बारिश उन पर जो खबरदार किए गए थे, बेशक इसमें निशानी है और नहीं थे उनमें अक्सर ईमान लाने वाले। और यकीनन तेरा रब वही है जो गालिब और मेहरबान है। जुटलाया था असहाबे ईका ने रसूलों को, जब कहा उनसे शुएब ने क्यों नहीं तुम डरते, बेशक मैं हूं तुम्हारा रसूल ईमानदार, तो डरो अल्लाह से और अतात करो मेरी, और नहीं मैं मांगता तुमसे इस पर कोई सिला, नहीं मेरा सिला मगर रब्बुल आलमीन के जिम्मे। अब आपने नोट की है एक बात कि तमाम रसूलों ने एक ही पैगाम दिया है और एक ही तरह के सेंटेंस बोले हैं कि नहीं मैं मांगता तुमसे सिला मेरे रब के पास है, और डरो अल्लाह से। और अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमाते हैं कि उन्होंने अपनी कौम को क्या नसीहत की थी कि पूरी किया करो फरमाइश और ना हो नुकसान पहुंचाने वालों में, और तोला करो तराजू सीधी रखकर, और ना कम दिया करो लोगों को उनकी चीजें, और ना फिरा करो जमीन में फसादी होकर। और आयत नंबर 184, और डरो इससे जिसने पैदा किया तुमको और खलकत को पहले वक्तों की, और वो कहने लगे असल में तुम साहरज़दा लोगों में से हो और नहीं हो तुम मगर एक आदमी हम जैसे, और यकीनन हम गुमान करते हैं तुमको झूठों में। सो ला गिराओ हम पर एक टुकड़ा आसमान से अगर तुम हो सच कहने वाले। कहा उसने मेरा रब खूब वाकिफ है इससे जो कुछ तुम करते हो। तो झुटलाया उन्होंने उसको, सो आ पकड़ा उनको अजाब ने साइबान वाले दिन के, बेशक वो था अजाब बड़ा सख्त, बेशक उसमें निशानी है और नहीं थे उनमें से अक्सर ईमान लाने वाले। और यकीनन तेरा रब वही है जो गालिब और मेहरबान है, और यकीनन ये नाजिल किया हुआ है रब्बुल आलमीन का। और आयत नंबर 193 के उतरा है इसको लेकर एक फरिश्ता ईमानदार तेरे कल्ब पर, ताकि तू हो जाए डराने वालों में।
عربی زبان میں فصیح و بلیغ، اور یقیناً یہ ہے کتابوں میں اگلوں کی۔ اور آیت نمبر 197، اور کیا نہیں ہوئی ان کے لیے یہ دلیل کہ جانتے ہیں اس بات کو علماء بنی اسرائیل کے، اور اگر ہم نازل کرتے اس کو کسی اجمی پر اور وہ پڑھ کر سناتے اسے ان کو، تو نہ ہوتے وہ اس پر ایمان لانے والے۔ اور آیت نمبر 200، اور اسی طرح سے داخل کر دیا ہم نے انکار کو دلوں میں مجرموں کے، نہیں ایمان لائیں گے وہ اس پر جب تک دیکھ نہ لیں گے عذاب درد دینے والا، بس وہ واقعہ ہوگا ان پر ناگہان اور انہیں خبر بھی نہیں ہوگی۔ بس وہ کہیں گے کہ کیا ہمیں مہلت ملے گی؟ تو کیا یہ ہمارے عذاب کے لیے جلدی کر رہے ہیں؟ بھلا دیکھو، اگر ہم ان کو فائدہ دیتے ہیں سالوں، پھر واقعہ ہو ان پر جس کا ان سے وعدہ کیا جاتا ہے، تو نہ کام آئے گا ان کے جو فائدہ یہ اٹھاتے تھے۔ اور نہیں ہلاک کی ہم نے کوئی بستی مگر اس کے لیے تھے پہلے سے خبردار کرنے والے، یا دہانی کے لیے، اور نہیں ہے ہم ظالم۔ اور آیت نمبر 210، کہ نہیں لے کر نازل ہوئے اس کو شیاطین، اور نہ یہ لائق ہے ان کے، اور نہ وہ استطاعت رکھتے ہیں، بلا شبہ وہ اس کے سننے سے معزول ہو چکے ہیں۔ تو مت پکارنا اللہ کے ساتھ معبود کوئی اور، ورنہ ہو جاؤ گے تم عذاب پانے والوں میں۔ اور ڈر سنا دو اپنے رشتہ داروں کو قریب کے۔ اب غور کیجئے، یہ حکم ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ کا کہ ڈر سنا دو اپنے رشتہ داروں کو قریب کے، اور جھکاؤ اپنے بازو ان کے لیے جو اتباع کرے تمہاری ایمان لانے والوں میں سے، پھر اگر نافرمانی کرے تمہاری تو کہہ دو یقیناً میں بری ذمہ ہوں اس سے جو تم کرتے ہو، اور بھروسہ رکھو اس پر جو غالب ہے، مہربان ہے، جو دیکھتا ہے تم کو جب تم کھڑے ہوتے ہو اور تمہارا پھیرنا سجدہ کرنے والوں میں، بے شک وہ سننے والا ہے اور جاننے والا ہے۔ کیا میں تمہیں بتاؤں کہ کس پر اترتے ہیں شیاطین؟ اترتے ہیں وہ ہر اس پر جو جھوٹا گناہ گار ہے، لا ڈالتے ہیں سنی ہوئی، اور ان میں سے اکثر جھوٹے ہیں۔ اور آیت نمبر 224، اور شاید تو پیروی کرتے ہیں ان کی گمراہ لوگ، کیا نہیں دیکھا تم نے کہ وہ ہر وادی میں بھٹکتے پھرتے ہیں، اور بلا شبہ کہتے ہیں وہ جو نہیں وہ کرتے۔ اور اب آیت نمبر 227 جو اس سورہ کی آخری آیا ہے، مگر وہ لوگ جو ایمان لائے اور کیے نیک کام اور یاد کرتے ہیں اللہ کو کثرت سے، اور انتقام بھی لیا انہوں نے اس کے بعد جو ظلم ان پر کیا گیا، اور انقریب جان لیں گے وہ جنہوں نے ظلم کیا کہ کون سی لوٹنے کی جگہ ہے، وہ لوٹ کر جاتے ہیں۔ اس سورہ میں ہم نے بہت سے نبیوں کے قصے پڑھے اور بہت سے قوموں پہ عذاب کے قصے بھی پڑھے۔ ہم اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کی حیثیت سے قیامت کے دن ہم ایسے عمل لے کے جائیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم پر فخر کرے۔ آمین ثم آمین۔ اب دیکھتے ہیں کہ سورۃ نمل میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمارے لیے کیا احکامات رکھے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ طاسین حروف مقطعات ہے اور جس کا علم اللہ سبحانہ تعالیٰ ہی جانتے ہیں۔ تلک آیات القرآنی و کتاب مبین، اور یہ آیات ہے قرآن اور کتاب کی جو واضح روشن ہے، ہدایت اور بشارت ہے ایمان والوں کے لیے۔ وہ لوگ جو قائم کرتے ہیں نماز اور ادا کرتے ہیں زکوٰۃ، اور وہی ہے آخرت پر جو یقین رکھتے ہیں۔ بے شک وہ لوگ جو ایمان نہیں رکھتے آخرت پر، آراستہ کر دیے ہم نے ان کے لیے ان کے اعمال، تو وہ بھٹکتے پھرتے ہیں۔ یہی لوگ ہیں وہ جن کے لیے ہے بڑا عذاب، اور وہ آخرت میں زیادہ نقصان اٹھانے والے ہیں۔ اور یقیناً تم کو عطا کیا جاتا ہے یہ قرآن اس کی طرف سے جو حکیم ہے اور علیم ہے۔ جب کہا موسیٰ نے اپنے گھر والوں سے کہ بے شک میں نے دیکھی ہے آگ، میں عنقریب لاتا ہوں تمہارے پاس وہاں سے کوئی خبر، یا لاتا ہوں تمہارے پاس دہکتا ہوا انگارہ تاکہ تم آگ تاپو۔ اور آیت نمبر 1 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں، پس جب وہ آیا اس آگ کے پاس تو ندا دی گئی کہ بابرکت ہے وہ جو آگ میں ہے اور جو ہے اس کے ارد گرد، اور پاک ہے اللہ جو رب ہے تمام جہانوں کا۔ اے موسیٰ بے شک میں ہی ہوں اللہ عزت والا اور حکمت والا۔ اور ڈال دے اپنی لاٹھی، سو جب اس نے دیکھا تو حرکت کر رہی تھی گویا کہ سانپ ہے، تو بھاگا پیٹ پھیر کر اور نہ دیکھا پیچھے مڑ کر۔ اے موسیٰ مت ڈر۔ یہ کس نے کہا؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے موسیٰ مت ڈر، یقیناً نہیں ڈرا کرتے میرے پاس رسول۔ آیت نمبر 11، سوائے اس کے جس نے ظلم کیا پھر بدل دیا نیکی سے برائی کے بعد، تو یقیناً میں ہوں بخشنے والا اور مہربان۔ اور ڈال اپنا ہاتھ اپنے گریبان میں، نکلے گا وہ سفید روشن بغیر کسی عیب کے۔ ہے یہ 9 نشانیوں میں سے فرعون کی طرف اور اس کی قوم کی طرف، بلا شبہ وہ بدکار لوگ ہیں۔ پھر جب پہنچی ان کے پاس ہماری روشن نشانیاں تو کہنے لگے کہ یہ کھلا جادو ہے،
اور آیت نمبر 14 اور انکار کیا انہوں نے उनका जबकि वो यकीन कर चुके थे इनका अपने दिलों में बेइंसाफी और गुरूर से। सो देख लो कैसा अंजाम होता है फसाद करने वालों का। और बेशक हमने अता की दाऊद और सुलेमान को इल्म और कहा उन दोनों ने कि शुक्र है अल्लाह का जिसने फजीलत दी हमें बहुत सौ पर इन बंदों में से जो ईमान लाए हैं। और वारिस हुआ सुलेमान दाऊद का। और कहा उसने ए लोगों सिखाई गई है हमें बोली परिंदों की और अनायत फरमाई गई है हमें हर चीज, बेशक ये इसका फजले खास है। और जमा किए गए सुलेमान के लिए इसके लश्कर जिन्नों के और इंसानों और परिंदों के, फिर उनकी जमातें बनाई गई, यहाँ तक कि जब वो पहुंचा चूंटियों की वादी में तो कहा एक चूंटी ने कि ए चूंटियों दाखिल हो जो अपने बिलों में, ना कुचल डाले तुमको सलमान और उसके लश्कर और उनको खबर भी ना हो। देखिए यहाँ से पता चलता है कि चूंटियां भी इल्म रखती हैं और वो बोलती हैं। तो अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमाते हैं कि सलमान अलैहिस्सलाम तो वो मुस्कुराया हंसते हुए उसकी इस बात से और कहने लगा कि मेरे रब मुझे तौफीक अता कर कि मैं शुक्र करूं तेरी नेमत का, वो जो तूने मुझ पर की है, मुझ पर और मेरे वालिदैन पर, और ये कि करूं नेक काम तो खुश हो जिनसे और दाखिल फरमा मुझको अपनी रहमत से नेक बंदों में। ये बहुत प्यारी दुआ है, आप लोग भी इसे याद कर लीजिए। रब्बी औज़िनी अन अशकुरा निअमतक अल्लती अनअमत अलैया व अला वालिदैया व अन अअमला सालिहन तर्दा व अदखिलनी बिरहमतिका फी इबादिका सालिहीन। और सुलेमान अलैहिस्सलाम कहने लगे कि ए मेरे रब मुझे तौफीक अनायत कर कि मैं शुक्र करूं तेरी नेमत का, वो जो तूने मुझ पर की और मेरे वालिदैन पर, और ये कि करूं नेक काम तो खुश हो जा जिन पर तू, और दाखिल फरमा मुझको अपनी रहमत से अपने नेक बंदों में। आमीन सुम आमीन। और जायजा लिया उसने परिंदों का तो कहने लगा कि क्या सबब है, नहीं नजर आता मुझे हुदहुद, क्या वो है गायब हो जाने वालों में से? मैं जरूर उसे दूंगा अजाब बहुत सख्त, या जबा कर डालूंगा उसे, या पेश करे वो मेरे सामने कोई वाज़े दलील। तो देर की उसने थोड़ी सी, फिर कहने लगा कि मुझे मालूम हुई है वो नहीं खबर जिसकी तुझे, और मैं ले आया हूँ तेरे पास सबा से एक खबर यकीनी। और आयत नंबर 23, यकीनन मैंने पाया एक औरत को कि हुकूमत करती है उन पर और दी गई है उसे हर चीज, और उसका है एक तख्त बहुत बड़ा। मैंने पाया उसको और उसकी कौम को सजदा करते हैं आफताब को अल्लाह के सिवा, और रास्ता कर दिखाया है उनको शैतान ने उनके अमाल, बस रोक रखा है उन्हें रास्ते से, बस वो राह रास्त पर नहीं आते। और आयत नंबर 25 के नहीं सजदा करते अल्लाह को जो जाहिर कर देता है छुपी चीजों को आसमान और जमीन में, और जानता है जो तुम पोशीदा करते हो और जो तुम जाहिर करते हो। अल्लाह नहीं है कोई माबूद सवाए इसके जो रब है अर्शे अजीम का। ये आयत सजदा भी है। कहा उसने अनकरीब हम देख लेंगे, आया तूने सच कहा है या तू है झूठों में। ले जा ये मेरा खत और डाल दे इनको उनकी तरफ, फिर हट जा उनके पास से, फिर देख के वो क्या जवाब देते हैं। और आयत नंबर 29, वो बोली कि ए दरबार वालों बिलाशुबा पहुंचाया गया है मुझ तक एक खत जो बावकत है, बिलाशुबा वो सुलेमान की तरफ से है, और बिलाशुबा वो है नाम से अल्लाह के जो मेहरबान और रहम करने वाला है। और ना सरकशी करो मुझसे और मेरे पास चले आओ फरमाबरदार होकर। वो बोली कि अहले दरबार मशवरा दो मुझे मेरे मामले में, नहीं तय किया करती मैं कोई मामला जब तक कि ना तुम हाजिर हो। वो कहने लगे कि हम बड़े जोर आवर और सख्त जंगजू हैं और हुक्म तेरे इख्तियार में है, तू देख ले कि जो तुझे हुक्म करना है। उसने कहा बिलाशुबा बादशाह जब दाखिल होते हैं किसी शहर में तो तबाह कर देते हैं उसको और कर दिया करते हैं वहां के इज्जत वालों को जलील, और इसी तरह ये किया करते हैं। और यकीनन मैं भेजती हूँ उनकी तरफ कुछ तोहफे, फिर देखती हूँ कि क्या जवाब लेकर लौटते हैं कासिद। फिर जब वो पहुंचा सुलेमान के पास, कहा उसने कि तुम मदद देना चाहते हो मुझे माल से, सो जो कुछ अता फरमाया मुझे अल्लाह ने वो बेहतर है इससे जो दिया है तुमने मुझे, बल्कि तुम ही अपने तोहफे से खुश होते होगे। तो लौट जा उनके पास, हम जरूर लेकर आएंगे उन पर ऐसे लश्कर के नाम मुकाबला कर सकेंगे वो जिनका, और हम जरूर निकाल देंगे उनको वहां से जलील करके, और वो ख्वार हो जाएंगे। आयत नंबर 38, और सुलेमान अलैहिस्सलाम ने कहा कि ए दरबार वालों कौन तुम में से ला सकता है उसका तख्त इससे कबल कि वो आए मेरे पास फरमाबरदार होकर। कहा एक कवि हेकल ने जन्नात में से कि मैं ले आता हूँ तेरे पास इसको इससे कबल कि तू उठे अपनी जगह से, और बिलाशुबा हूं मैं इस पर कवि ईमानतदार।
کہا اس نے جس کے پاس تھا علم کتاب کا کہ میں لے آتا ہوں اسے اس سے پہلے کہ جھپکے تیری طرف تیری آنکھ۔ بس جب اس نے دیکھا اس کو رکھا ہوا اپنے پاس تو کہا یہ فضل ہے میرے رب کا تاکہ وہ مجھے آزمائے آیا میں شکر کرتا ہوں یا نہ شکری کرتا ہوں، اور جو شکر کرتا ہے تو بس شکر کرتا ہے اپنی ذات کے لیے، اور جو نہ شکری کرتا ہے تو یقیناً میرا رب بے نیاز ہے اور کریم ہے۔ اور آیت نمبر 41، کہا اس نے کہ وضع بدل دو اس کے لیے اس کے تخت کی کہ ہم دیکھ لیں کہ وہ سوجھ بوجھ رکھتی ہے یا وہ ہے ان میں سے جو سمجھ نہیں رکھتے ہیں۔ پھر جب وہ آ پہنچی تو کہا گیا کہ کیا اسی طرح کا ہے تیرا تخت؟ اس نے کہا یہ تو گویا وہی ہے، اور ہو گیا تھا ہم کو علم اس سے پہلے ہی، اور ہو گئے ہیں ہم سب فرما بردار۔ اور اس نے روکا، کس نے؟ سلیمان علیہ السلام نے، ان کو جس کی وہ عبادت کرتی تھی اللہ کے سوا، بے شک تھی وہ قوم کافروں کی۔ کہا گیا اس سے کہ داخل ہو جا محل میں، تو جب دیکھا اس نے تو سمجھا اسے گہرا پانی، اور کھول ڈالی اپنی پنڈلیاں۔ اس نے کہا کہ بلا شبہ یہ ایک محل ہے جڑا ہوا شیشوں کا۔ وہ بول اٹھی، میرے رب یقیناً میں ظلم کرتی رہی اپنے آپ پر، اور ایمان لاتی ہوں میں سلیمان کے ساتھ اللہ پر جو رب ہے تمام جہانوں کا۔ اور آیت نمبر 45، اور یقیناً ہم نے بھیجا تھا سمود کی طرف ان کے بھائی صالح کو کہ عبادت کرو اللہ کی، تو پھر وہ دو فریق ہو گئے آپس میں جھگڑا کرنے والے۔ کہا اس نے اے میری قوم کیوں جلدی کرتے ہو تم برائی کے لیے بھلائی سے بھی پہلے؟ کیوں نہیں مغفرت طلب کرتے اللہ سے تاکہ تم پر رحم کیا جائے؟ اور آیت نمبر 47، وہ کہنے لگے کہ برا شگون ہو ہمارے لیے تم اور جو تمہارے ساتھ ہیں۔ اس نے کہا کہ تمہاری بدشگونی اللہ کے پاس ہے، بلکہ تم وہ لوگ ہو جن کی آزمائش کی جا رہی ہے۔ اور تھے شہر میں 9 شخص جو فساد کیا کرتے تھے زمین میں اور اصلاح نہیں کرتے تھے۔ اور آیت نمبر 49، کہنے لگے کہ قسم کھاؤ اللہ کی کہ ہم شب خون ماریں گے اس پر اور اس کے گھر والوں پر، پھر کہہ دیں گے اس کے وارثوں سے کہ نہیں موجود تھے ہم ہلاکت پر اس کے گھر والوں کی، اور یقیناً ہم سچے ہیں۔ اور آیت نمبر 50، کہ انہوں نے چلی ایک چال اور ہم نے بھی کی ایک تدبیر اور ان کو کچھ خبر نہ ہوئی، تو دیکھ لو کہ کیسا انجام ان کی چال کا، بلا شبہ ہلاک کر ڈالا ہم نے ان کو اور ان کی ساری قوم کو۔ تو یہ ہے گھر ان کے ویران پڑے ہوئے ان کے سبب جو ظلم انہوں نے کیے، بے شک اس میں نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے جو علم رکھتے ہیں۔ اور نجات دی ہم نے ان لوگوں کو جو ایمان لائے اور وہ ڈرتے تھے۔ اور لوط کو جبکہ کہا انہوں نے اپنی قوم سے کہ تم کیوں کرتی ہو بے حیائی جبکہ تم دیکھتے ہو؟ کیا تم مائل ہوتے ہو مردوں کی طرف شہوت لیے ہوئے بجائے عورتوں کے؟ حقیقت یہ ہے کہ تم لوگ جہالت کرتے ہو۔ تو نہ تھا کچھ جواب اس کی قوم کا مگر یہ کہ کہنے لگے نکال دو لوط کے گھر والوں کو اپنے شہر سے، بے شک یہ لوگ ہیں پاک بننا چاہتے ہیں۔ تو نجات دی ہم نے اس کو اور اس کے گھر والوں کو، مگر اس کی بیوی کے مقرر کر رکھا تھا ہم نے اس کی نسبت کہ وہ پیچھے رہنے والوں میں سے ہے۔ اور آیت نمبر 58، اور برسائی ہم نے ان پر ایک بارش، سو بہت ہی بری تھی یہ بارش ان پر جن کو متنبع کیا گیا تھا۔ اور اب آیا نمبر 59 جو اس پارہ کی آخری آیا ہے کہ کہہ دو کہ سب تعریفیں اللہ کے لیے ہیں، اور سلام ہے اس کے ان بندوں پر وہ جن کو اس نے منتخب فرمایا، بھلا اللہ بہتر ہے یا وہ جن کو وہ شریک بناتے ہیں۔ الحمدللہ یہاں پہ ہمارا 19 پارہ کمپلیٹ ہوتا ہے۔ دیکھیے اس پارہ میں جو ہم نے جتنے بھی انبیاء کے قصے پڑھے، ہم نے ان کی قوموں کے قصے پڑھے، ہمیں ایک ہی سبق ملتا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے حکموں کے مطابق زندگی نہیں گزاریں گے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کے غضب کا شکار ہوں گے۔ اب دیکھیے ہمارے سامنے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نہیں ہے نا، ہمارے پاس کون ہے؟ ہمارے پاس یہ قرآن ہے، اور اسی قرآن میں جو احکامات ہیں ان کے مطابق ہماری زندگیاں بسر ہونی چاہیے۔ اگر ہم ان کے مطابق اپنی زندگی بسر نہیں کرتے تو کیا ہم اس کے لیے تیار ہیں کہ قیامت کے دن ہم اللہ سبحانہ تعالیٰ کے سامنے کھڑے ہو کے اس بات کا جواب دے سکیں گے؟ دیکھیے اسی وجہ سے میری یہ کوشش ہے ایک چھوٹی سی کہ ہم اردو میں ایک دفعہ اپنی زبان میں قرآن کو سمجھ لیں کہ ہمارے رب نے ہمیں کیا احکامات دیے ہیں۔ وہ تمام قومیں جو اس سے پہلے برباد ہو گئی، جن کے اوپر عذاب آئے تھے، وہ اللہ کی مخلوق تھے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ان سے محبت کرتے تھے، لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ کا غضب کیوں آیا تھا؟ کیونکہ وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے حکموں کا انکار کرتے تھے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں اور ہماری اولاد کو اور ہماری آنے والی نسلوں کو اس قرآن کا پیغام سمجھنے کی توفیق عطا کر دے۔ آمین ثم آمین۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون۔